Okay, fine. So in today's class, oh my god, एक second. In just a second, a pen, yeah, pen tab, ठीक है. Okay, in today's class, we are going to learn about power and exponents. Okay, Okay. so do you have any idea? कुछ भी इसके बारे में जानते हो तो आप बताओ हमें. कुछ भी जो जानते हो आप. No, sir, nothing. I've not learned anything. Okay, कुछ भी नहीं पता. No, sir. Okay, no problem. Don't worry. So it's okay, fine. I will help you here. Okay. Give me a second. Yeah. सबसे पहले हम चलते हैं ये जानने कि ये पावर और एक्सपोनेंट बोलते किसे हैं. क्या होता क्या है, ये चीज होती क्या है, ये पावर क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है. What we called it. Okay. Okay. So I'm just going to write down something here. 2 power. Can you see this? Yes, sir. Do you know what does it mean actually? No, sir. Okay, you don't know, no problem. So if you अच्छा एक चीज दिख रहा है आपको, 2 के ऊपर सिर के ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा गया है 3. Can you see that? J. So we called this one as a base. What we called? Base. Base. Base मतलब सतह, जमीन, right? Yeah. और जब घर बनता है तो बेस बनता है, उसके ऊपर छत बनाते हैं हम, राइट? तो J. आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि बेस हमारा नीचे है और छत हो गई ये. So this we called power. This we call power, or you can also say this one as exponent. Okay? तो इसको statement कैसे बोलते हैं? How we read this? So we read this 2 power 3. हम कैसे पढ़ते हैं इसको बोलने के लिए? अगर हमको बोलना है कि क्या इसको क्या लिखा मैंने, so 2 power 3 बोलेंगे. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं. सपोज आई हैव रिटन 5 ओवर, ये इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? 5 power 2, right? So in this, who is the base? Who is the base? 5. 5 will become the base and this will become the power. So do you clear कैसे लिखते हैं हम? G. बोलते क्या है ये मालूम हो गया अभी, right? Yes, sir. Okay, now what does this mean actually? What does this mean? Actually, I'm just telling you. 2 power 3 बोला इसने. क्या बोला इसने? 2 power 3. इसका मतलब हो जाता है कि we will multiply 2 how many times? 3 times. Can you see that? Yes, sir. यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर सेम उस तरीके से बताओ मुझे. Sir, 5 how many 2 times? times. 2 times. Clear? Yes, sir. So this is called power or exponent. This is called what? Power or exponent. So power and exponent का मीनिंग यही होता है कि कोई बेस के ऊपर में कोई एक नंबर लिख दिया, so it will multiply in that many times. I'm taking one more example for you. Suppose that I have taken here 4 power 5. What I have taken? 4 power 5. So what I will do, I will write down 4 times 4 times 4. How many times I will write? 5 times. 5 times I will write. I will write how many times? 5 times. 5 times. अब एक काम करो, जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना आएगा ये? So 6. Try once more time. It's not Sorry, 6. sir. Sorry. 2 to the 4 and 8. 4 to the 8. ये कितना हो जाएगा? Sir, 10. No, 10 multiply करना है. It's multiply. Oh, sorry. Sir, 35. 35 नहीं, 25. Clear है? Yes, sir.
Similarly, can you try to multiply this one? Yes, sir. चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ. ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 और ये 4. 16 4 will give me how much? 64. 64. And 64 times 16 will give you how much? Multiply करो. जी. So 384. Let me check also. Mm-hmm. 64 times 16. No, wrong answer. Multiplication में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. Sir, is the answer 1024? 1024 is the correct answer, right? Okay. So यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, राइट? जी. ओके. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? Why we are learning this? आया होगा ना? Yes. कि क्या जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, हमें क्या फायदा मिलेगा इसको पढ़कर, ठीक है? So the reason behind, I will just let you know. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड. Yes. अभी अभी आपने 8 लिखा था, राइट? Yeah. और उसके नीचे एक नंबर था 25 लिखा था आपने, करेक्ट? Yeah. So if I want to check it, the 8 is the factor of what? So I can see the 8 is a factor of 2. Yeah. And power 3, मतलब 8 को अगर मुझे लिखना है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? ओके. 25 को अगर मुझे लिखना है तो कैन आई राइट डाउन इन दिस फॉर्म? Yeah. एंड अभी अभी एक नंबर आपने और बनाया है 1024, राइट? Yes, sir. इसको आप 4 पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हो. Yeah. So what I mean basically, these big numbers, these big numbers, you are converting in the small numbers. Can you see that? Yeah. छोटे छोटे नंबर्स हैं ये 2 जी. 5 4. पावर छोड़ दो, ये छोटे छोटे नंबर्स है, राइट? इन जी. बड़े बड़े नंबर्स को आपने क्या कर लिया? छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करके रख लिया अपने पास, राइट? Yeah. सो जब आप एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल लो, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, गिव मी अ सेकंड. Okay. रियल लाइफ एग्जाम्पल. आप मार्केट जाते हो, राइट? Yes. So you will say that give me 1000 kg of potato. Of what? Potato. Potato. 1000 kg. आपने सीधा क्या बोला? शादी थी, 1000 पार्टी थी, पता नहीं क्या था, I don't know. 1000 kg of potato मांग लिया आपने, right? जी. अब इसी 1000 को अगर हम सिंपल देखें, so can I say this is 10 times 10 times 10? Yes, sir. इसी 1000 को if 10 times 10 times 10 है, so can I write it down here 10 the whole power 3? देखो मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि अगर ब्रैकेट यूज नहीं करता तो आप कहते जी ये तो 0 पे पावर 3 है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट पुट कर दिया. ब्रैकेट पुट कर देने से क्या होगा कि पूरे 10 पर आपको पावर मिलेगा. अंडरस्टैंड? यस सर. जनरली लोग लिखते ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, जनरली लोग 10 पावर 3 ऐसे लिख देते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, बट ये मत समझना कि ये 0 पर पावर 3 है. ओके,
इट्स 10 Yeah. पावर 3। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब भी आप ऐसे लिखो सो यूज द ब्रैकेट। ब्रैकेट लिखने से मालूम चलता है कि आपने पूरे होल पर, जो ये होल नंबर है, इस होल नंबर पे आपने पावर लिया है। इज इट क्लियर? तो Yes. ब्रैकेट से कोई मतलब चेंज नहीं हो जाता, इट्स द सेम मीनिंग। ओके Okay. Okay. या सो अब देखो 1000 kg को हमने 10 द पावर 3 लिख लिया, राइट? Yeah. अब सिंपल सी बात, एक चीज और ध्यान दो, गिविंग मोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg of potato। जरा बोल के बताओ कितना केजी चाहिए, बोलो। Sir, what will be हाँ, 1 minute? Sorry. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah, sir. Sir, 1 billion kg of potato. काउंट करने में टाइम लग गया? नहीं सर, मेरा बुक गिर गया। ओके, नो इशू, ठीक है। मुझे तो भाई नहीं समझ आया कि क्या बोलेंगे। 1 बिलियन ट्रिलियन क्या, एक जीरो और लगा दें तो, 2 जीरो और लगा दें तो क्या हो जाएगा? सर 1 trillion। और एक और जीरो लगा दिया तो? सर क्वाड्रिलियन। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब क्या होगा? सर इन्फिनिटी सर। नहीं, अब देखो, मैंने ये जानबूझ के किया आपके साथ, ठीक है? जी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बहुत बड़ा नंबर है, इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, राइट? यस क्या, सर। क्या हम पढ़ सकते हैं इसको आसानी से? नहीं सर। पढ़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, राइट? जी। अब मैं क्या करूंगा, देखो 10, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 10 10, कितने जीरो से काउंट करो? 3 3 6 6 9 12 12 15 18 21। 1। Just I will put it like this, 10 the power 21। पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया। kg of potato। इतना पोटैटो किसी घर में नहीं जाएगा, ओके? सो जस्ट मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ। सो 10 the power 21 रीड करना मेरे लिए आसान है एज कंपेयर टू जो मैंने ऊपर लिखा है, राइट? या। So these things will give us idea. Okay, I will give you one more real life example also, which you will understand why we are studying about it. Okay, Yes. so just taking, give me a second. Sir, I have one question, sir. Yes, tell me. So, sir, the point of power and exponents is of making large numbers easier. Yes, yes, you are right. Okay, अभी देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, just give me a second. एक इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ओके? जस्ट होल्ड सेकंड। एक सेकंड रुकिए। या। ये देखो, मैं एक विकिपीडिया से एक चीज लिया हूँ आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, अर्थ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? अर्थ के बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अबे मिलियन किलोमीटर कितना होता है बच्चे को पता ही नहीं है। कितने जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे बच्चे को इसमें पता ही नहीं है, ठीक है? बहुत बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 10 के फॉर्म में लिख दिया, राइट? हमने 10 के फॉर्म में लिख दिया तो बच्चा पढ़ के समझ सकता है कितना है। जी। हाँ जी सर। एक मिलियन में कितना होता है, कितने जीरोस आते हैं? 6 zeros, राइट? या। सो 1 मिलियन में, अब देखो मैं लिखता हूँ 149.6, 1 मिलियन के लिए मैंने लिख दिया 10 the power 6। कोई दिक्कत है? नहीं सर। मैं इस तरह से लिखता 1 2 3 4 5 6,
इट्स टफ जॉब फॉर राइटिंग। Yes. मैंने यहाँ 10 the power 6 सिंपल लिख दिया, राइट? जी। और इसको किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है सो 10 the power 3 meters, राइट? Yeah. अब Yes. इसको मैं सिंपली लिखूं सो 149.6 इंटू 10 the power 9 meters, मीटर में कन्वर्ट हो गया इजिली, देखो। जी। अब बताओ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 10 the power 09 से मल्टीप्लाई करते रह जाते तो बहुत बहुत बड़ा नंबर था, बार बार नंबर लिखना पड़ता, बट नाउ इट्स इजी टू राइट। यस सर। सेम देखो मास में यहाँ क्या लिखा है बताओ? द मास इज रिटन 5.972 into 10 the power 24 kg लिखा है। जी। ये 10 the power 24 क्यों यूज किया? चाहता तो वो 0 ऐसे पुट करता चला जाता। अब एक बात बताओ, सिंपल इसने 10 the power 24 लिखा, मैंने रीड कर लिया इजिली, राइट? अब 0 पहले लिख देते तो पहले तो हम बैठ के 0 काउंट करते रह जाते, और एक 0 भी मिस हो गया पूरा नंबर क्या हो जाता उस केस में? गलत हो जाता। अगर एक काउंटिंग में एक 24 जीरोस है ना, हो सकता है मुझसे मिस हो जाए, बच्चे से मिस हो जाए, कभी हो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? सो तब क्या हो जाता? गड़बड़ी हो जाती, राइट? So that is the reason we are learning the powers. That is the reason why we are learning this. These are the examples. जो बहुत बड़े बड़े numbers हैं उनको छोटे तरीके से लिखने में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम ये powers and exponent की study कर रहे हैं. Do you clear with this? Yes sir. Okay, so come to our 1 minute sir. हाँ बोलिए. Sir, in the sir, how you converted from kilometers to meters, sir? Oh, kilometers to meters. Okay. Yes, sir. वन, अच्छा आपको तो उस दिन बताया भी था. जी. 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर? सर 1000. ये किलो है ना, तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर होगा. जी. तो देखो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ ये क्या है? 10 the power 3 means 3 zeros. 10 the power 3 means 3 zeros. Yes sir. और अगर दूसरा चीज देखें तो 10 into 10 into 10 है, so it gives me the 1000, right? Yeah. अब क्लियर है डाउट आपका? Yes sir. ओके चलो, तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कि आपको ये समझ आ जाए कि why we are learning exponent, what is the use of it. Is it clear? Yes sir. अब वापस चलते हैं हम. सो ये सारा हमने यूज के लिए आपको बता दिया. हम लिखते कैसे हैं ये भी मैंने आपको समझाया है, राइट? Yeah. So I'm taking one more example of the exponent. If you have x, what you have? X is any variable, any number you can consider. And if, oh my God. Okay, yeah, fine. X, and I have taken power as 4. So इसका क्या मतलब हो जाएगा? X times X times X times X. Do you clear? Yes sir. Any problem? No sir. तो अब आप एक काम करो, आप यहाँ से नोट करो सब कुछ. Okay. जो मैंने लिखा है सर्कल करके, बेस इसको कहते हैं, पावर इसको कहते हैं. यू हैव टू राइट इन द सेम वे, ओके? नहीं तो आप बाद में फिर भूल जाओगे. पहला पेज हो गया? 1 minute sir. ओके. जी sir. Okay, first page done. Note down the second one.
और इसके आगे लिखना आप आंसर 1024 1024। Yes, sir. Done. Done? Okay, fine. Just give me a second. Yeah. अब आप इसके बाद नोट डाउन करोगे, नहीं ये नोट नहीं करना, नहीं 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 नहीं, हाँ ये नोट डाउन करो आप, दिस वन। जी. Yes, sir. ओके ठीक है। उसके बाद ये तो पावर्स वाले हो गए, राइट? जी. एक रूल आपको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे इस रूल पर। रूल्स फॉर मल्टीप्लाई, ये एक्सपोनेंट में नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है रैशनल नंबर्स में, बट आई विल लेट यू नो राइट नाउ। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपने कभी कभी नंबर्स देखे होंगे, ऐसे नंबर्स रहते हैं, -2 टाइम्स -4, देखा है ऐसे? Yes, sir. ये Yeah. ये कितना हो जाएगा मालूम है? Sir, also +8. हाँ, +8. +8, okay, and if I say here 2 times +4, then Um, sir, the -8. -8, गुड गुड, ओके। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, यहाँ पे सेम आपने सही बोला है, ये एक्सपोनेंट के लिए नहीं है, पढ़ना कहीं और है, बट वी हैव टू यूज दिस वन, और मुझे लगा कि आपको नहीं मालूम होगा, सो याद रखेंगे आप। Okay. पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव मी पॉजिटिव। if I have a negative number, so it will give me positive. Positive. अभी लिखना नहीं, मैं Okay. बोलूंगा। Okay. If I have positive times negative, it will give me negative. And if I have negative times positive, then it will also give me negative. Negative. Means I'm just going to write down here same sign. क्या है यहाँ पे? Same sign. Sign. So it will give me what? Positive. Positive. Opposite signs. So it will give me Negative. negative. आप जो मैंने दोनों बॉक्सेस बनाए हैं उनको बनाओ, और ऊपर जो मैंने लिखा है सेम साइन पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन नेगेटिव, इसको लिख लो। Okay. ये पावर का नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट इट। सो दैट्स, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह पे ये काम आता है। जी. जल्दी से नोट को, तो हम एक जो एग्जांपल कर लेते हैं इसका। So one.
Done? 1 minute, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. Okay. Give me a second. Yes, sir. मैं एग्जाम्पल जो मैंने लिया ये हमारे जी. क्या है. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज नेगेटिव, सेम साइन, Yes, sir. सेम साइन, पॉजिटिव. ये क्या है, अपोजिट साइंस, तो नेगेटिव. Negative. नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर यहाँ कुछ भी हो. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. सो सपोज आई हैव टेकन -10 टाइम्स +20. तो नंबर देखो, 10 20 10 को क्या लिखेंगे, 200. 200. और Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स अपोजिट साइंस, सो अपोजिट साइंस Negative. नेगेटिव. दिस इज द आंसर. क्लियर? Sir. Yeah. ओके. चलो, तो अभी हम अपने उस पे आ जाते हैं, पावर वाले पे. 1 minute, sir. Yeah. I have a question. Yes, tell me. So doesn't this come into integers? Yes, it comes into integers. Okay. Right. Okay. Yes. Okay. Give me a moment. Yeah. Okay. Okay, fine. Yeah. जी. Sorry. We are moving ahead. मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया है, राइट? Yes, sir. फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, कोई एग्जांपल दो. Sir, 2/4. 2/4. कोई और एग्जांपल? 3/5. 1/2. 3/2, Okay, 3/5, right? yes, sir. If I am taking like this, if I'm taking like this, just give me a second, Yes, sir. Hello. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. So fine. अब देखो, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Fraction. पावर क्या है? So 3. कुछ नहीं करना, सिंपल, दिमाग ज्यादा नहीं चलाने का है इसमें. सीधा मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 2 जा 8. 8. नीचे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 into 4 4. जा how much? So 64. Good, 64. This is the answer. Yes. Next, 3/5 बोला है इसने, पावर 4. पावर 4 का मतलब हो जाएगा मुझे 4 टाइम्स लिखना है, राइट? Yes, sir. तो हम इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? No, sir. एक तरीका यहाँ और बताता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट. यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया, एक तरीका और है लिखने का. ओहो, कैंसल इट. एक तरीका और है इसको लिखने का. We can write it down this one as 3/4 and we can write it down this one as 5/4. Can you see that? Yes, sir. So this is also a way to write down. But अभी कोई बात नहीं, अभी आप इसी तरीके से जाओ. फ्रैक्शन में भी आप एक समझो कि नंबर है, राइट? So this जी. becomes 3 3 जा 9, 27, 81. So I'll write down 81. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625. क्लियर? Yes. So फ्रैक्शन में भी आएगा तो कैसे करना है, so you are clear now, right? Yes, sir. So one doubt, sir. Tell me. Sir, so we don't have to do the actual fractions
multiplication, right? तो हम वही कर रहे हैं ना, देखा जाए तो। क्या कोई कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, बताओ? नहीं सर। कैंसिल के लिए हम ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, राइट? जी ऊपर वाले नंबर में हो सकता है, बट हमने किया नहीं, जानबूझकर नहीं किया। बट जी नीचे वाले नंबर में पॉसिबल ही नहीं है, जी राइट? तो जी पॉसिबल नहीं तो हम छोड़ देंगे, सीधा मल्टीप्लाई रूल करेंगे, जो आप रूल यूज करते आए हो, राइट? जी okay yes sir. So sir we can simplify. हाँ, यस, इफ यू कैन। अभी हम नहीं कर रहे, मैं बाद में चल के बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन का भी, ठीक है? Okay. अभी हम नहीं कर रहे, बट यस यू आर राइट, वी कैन सिंप्लीफाई ऑल्सो। ओके, Okay. सर आई विल कॉल यू। क्या, कैन यू हियर मी? Yes sir. ओके, सॉरी फॉर द कॉल। It's आज okay. पता नहीं इतने सारे। ओके, चलो, यस, तो हमने ये कर लिया, कोई दिक्कत? जी. चलो, No sir. अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने इतनी सारी चीजें आपको सिखाई हैं अभी, ठीक है? जी. तो थोड़ा सा आप मुझे वर्कआउट करके बताओ, ओके? Okay. मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व इट। Yes. कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes sir. कुछ नहीं करना, इवेल्युएट, मतलब फाइनल आंसर चाहिए मुझे इसका। जैसे मैंने ये Okay. एग्जांपल आपको दिया था अभी, कैन यू सी दैट? जी. मैंने इसका फाइनल आंसर यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? इन Yeah. द सेम वे यू हैव टू डू, बी Okay. केयरफुल अबाउट प्लस माइनस साइंस। Yeah. हाँ, चलो, तो पहला वाला करो, फिर मुझे पहले आंसर करो। जी.
Done the first one? 1 minute, sir. Okay. I'm in the last. Yes, sir, done. Done? Okay, that's great. Yeah. Okay. So what's the answer? Sir, 18 by 125. 18 कैसे आ जाएगा? Um, 3 times 3 by 5? oh, sorry, sir. I did a mistake. Sorry. मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं चलेगा. कितना हो जाएगा बोलो अब ये? Sir, 9. 20. Yes. बोलिए बोलिए बोलिए. Yes, sir. Sir, 27. 27 upon 125. 125. Great. Okay, done. Second part. The second part. Yeah, this one. Second number. Yes, sir. Done? 1 minute, sir. Mm, yes, sir. How much answer you got? Sir, negative 243. नहीं, negative 243 कैसे हो जाएगा? Look here. This is 3 by 4 times 3 by 4 times 3 by 4 times 3 by 4, right? Yes, sir. तो चलो सबसे पहले numbers multiply करो. 3 3 जा 9, 9. 3 3 जा 9. ये दोनों multiply हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 81. 4 4 जा 16. 4 4 जा 16 और 16 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 256. करेक्ट? यस सर. अब ये देखो, ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा? सर नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है. सॉरी सर. नो सर, पॉजिटिव. तो क्या आंसर मिलेगा? पॉजिटिव 81 by 256, राइट? यस सर. कैन यू गो फॉर दिस? तो देखो मैं कैसे करता हूँ, उसको ध्यान से किया करो, ठीक है? जी जी. चलो करो इसको आगे करो. नेक्स्ट. यस.
Done? 1 minute, sir. Yes, sir. How much you got? Sir, 32 Mm-hmm. by 3125. 3125. Let me check. Yeah. हम्म, नहीं गड़बड़ है. Look here. क्यों गड़बड़ी क्यों हो रही है मल्टीप्लाई मुझे समझ में नहीं आ रहा. -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 times -2/3 ये लिखना है ना. 1 minute, sir. Sir, I put the wrong question, sir. Wrong question. Yes, sir. I did 2/5 by mistake. Oh, okay. Um, Sir, I'll redo it, sir. Yeah, do it. Yes, sir. So the answer will be 32 by 243. और पॉजिटिव और नेगेटिव So positive. कैसे पॉजिटिव होगा? टेल मी. So because um ये so देखो ना, ये देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा हमको? positive. ये नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा? Positive. ये नेगेटिव बच गया, लास्ट नेगेटिव, राइट? Yes, sir. इसको करेंगे क्या होगा? Sir, पॉजिटिव. ये नेगेटिव Yes. नीचे आ गया, अब क्या होगा? Sir, negative. तो ये ध्यान देना है ना. दूसरा तरीका करने का. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, Negative. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. ऐसे भी कर सकते हो आप. मैंने Yes, दूसरा भी sir. तरीका बता दिया. सो इट विल गिव यू -32/243. क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें बहुत कुछ करना बाकी है हमें. सो बी केयरफुल. ओके. Okay. चलो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ. यू नीड टू वर्क आउट ऑन इट. एक सेकेंड में दे रहा हूँ. जी. Go for this and evaluate. Okay. Evaluate this one. Yes, sir. Sir, I got the answer is 8/27. 8/27. Yes, you are right. Okay. Fine.
We have 8 minutes left. Okay. Now, note down rule. We have to learn rules of exponent. What we need to learn? Rules of Rules exponent. of exponent. Okay. Okay. First rule. If a power 0, क्या लिखा है इस पे? A power 0. So any number, any variable, a को हमने variable यहाँ लिया है. So you can consider it as a number, any number. Okay? Yes. Any number, any variable, उसके पावर में 0 लिखा है. क्या लिखा है? 0. इसको मैं लिख देता हूँ, ये 0 है. इसको ओ मत पढ़ना. ठीक है? So it's 0. So any number, any variable with the power 0 will be equals to 1. Will be equals to what? 1. 1. Rule number 1. Okay. As example, 3 power 0, 1. 10 power 0, 1. 2 by 7 power 0, 1. X power 0, 1. Clear है? हाँ? Go down करो सारा example. Yes. तो किसी भी नंबर के ऊपर में पावर में 0 लिखा होगा, so that number will become 1. चाहे वो कोई भी नंबर हो. I'm taking a very big number. Yes. 7, 1, 2, 5. Power 0. Answer will be 1. 1. आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो भी चीजें मैंने आज पढ़ाई हैं, ठीक है, यू हैव टू वर्क आउट ऑन इट. और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का आपको भेजूंगा, सो दैट वन यू नीड टू लुक एंड सॉल्व. ओके? Okay. चलो कोई जल्दी कर लो इसको. Yes, sir. Yes, sir. हो गया? जी sir. Give me a moment. Yeah. नेक्स्ट रूल. अच्छा, रेसिप्रोकल मालूम है क्या होता है? जी sir. क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ लिखा 4/7. What is the reciprocal of 4/7? So 7/4. And if I have written only 5, what is the reciprocal of 5? So 1/5. Good, perfect answer. Rule number 2. Rule number 2. Just writing. Give me a second. Yes, sir. If you have any number, like I have written here, a power minus n. क्या लिखा मैंने? A power minus n. Now you can see the power is negative. Number negative नहीं है. क्या है ऊपर में? N. Power is negative. What you can see? Power is negative. Negative. So we write down the answer as 1 upon a power n. हम पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? 1 upon a power n, right? Yes. One more thing. Suppose you have a number like this, a by b power minus n. तो आप इसको क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे. क्या करोगे? Reciprocal, and just put the power, positive power. Can you see that? Okay. Yes. I will take examples. Don't worry. Suppose it मेरे पास है 5 power minus 2. क्या है मेरे पास? 5 power minus. So I can write down here, reciprocal कर दिया मैंने इसको पहले तो. जी. और power put कर दो. So it becomes जी. how much? 1/25. 1/25.
another example. Suppose it I have taken 3 by 4 power minus 3. What have taken? Power minus 3. -3. कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करो. क्या करो? रेसिप्रोकल. और पावर लिख दो as it is. पावर लिख दो as it is. So अब क्या करेंगे हम? 4 by 3, 4 by 3, 4 by 3, and this becomes 64, and this becomes 27. Clear hai? Yes, sir. So this is the rule number 2. So make a note of the rule number 2. Yeah. Rule number 2 note करके examples भी नीचे note करेंगे. जी sir. Yes, sir. Done. Done? Okay. Yeah. Okay, fine. Just give me a moment. तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जी सर. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया. तो हम कल मिलेंगे और इस पे हम कल और प्रैक्टिस करेंगे. ओके. या. और आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर भेजूंगा सो दैट यू कैन डू इट. फाइन. यस. एंड आप अपना पीडीएफ भेज देना वो एक्सपोनेंट का बुक का. राइट? ओके. ओके. या. ओके, फाइन. बाय. टेक केयर. विल मीट टुमारो. यस सर. ओके. Thank you. Thank you, sir.